نماز کی حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح حیا علی الفلاح۔ اس سے بھی اعلیٰ کیا ہے فضیلت نماز کی، فضیلت نماز کی، فضیلت نماز کی، جنت میں لے کے جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ، کیا نام ہوا آپ کا؟ کھڑے ہو جائیے۔ ابراج۔ ابراج نام ہے، محمد ابراج جی۔ اور ماشاء اللہ ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے اور میں دیکھا ہوں، تو میں آپ کو اصلاح کی نیت سے انشاءاللہ نماز کا طریقہ بتاؤں گا، ٹھیک ہے نہیں؟ کیونکہ نماز اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب پر فرض کیا ہے، اور جس طریقے سے نماز پڑھنے کا طریقہ ہے اگر ہم اس طریقے سے نماز نہیں پڑھیں گے تو اس میں ہمارے لیے نقصان ہے۔ جسے پاک میں آیا کہ جب بندہ مومن نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کے تحفے کو فرشتہ رب کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہے۔ جیسے فرشتہ لے کے جاتا ہے تو اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اے فرشتوں، اس نماز کے تحفے کو نمازی کے منہ پہ مار دو۔ اللہ کے فرشتے کہتے یا اللہ، اس بندے نے زمین پر نماز پڑھی اور اس تحفے کو میں تیرے بارگاہ میں لے کے آیا، تو اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ جس طریقے سے رکوع کرنے کا، سجدہ کرنے کا یعنی نماز پڑھنے کا حق تھا، اس بندے نے یا بندی نے نماز نہیں پڑھا یا پڑھی۔ تو نماز یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فرض کردہ عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے، اور نمازی کے بارے میں آیا ہے کہ قیامت کے دن مسلمانوں میں سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو نماز ہم پڑھتے ہیں، برسوں سے ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں نماز پڑھنے کا صحیح سے طریقہ پتہ نہیں ہوتا ہے، اور غلطی ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے امام صاحب جو مسجد کے ہوتے ہیں یا قاری صاحب یا مفتی صاحب یا ہمارے گاؤں کے جو بڑے طلبہ کرام باہر مدرسے میں پڑھتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے نہیں ہیں، تو ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ پتہ نہیں ہوتا۔ بس ہم دیکھ چلے آ رہے ہیں کہ ہمارے دادا چاچا گاؤں کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اسی رکوع سجدہ کر رہے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے 10 سال 15 سال سے نمازیں پڑھی، ہماری نماز غلط ہو گئی۔ انشاءاللہ آج ہم نماز پڑھنے کا ان کو طریقہ بتائیں گے۔ انہوں نے نماز پڑھی ہے، ان کا بھی آپ نے دیکھا، تو ان کے اندر بہت ساری غلطی ہے۔ سب سے پہلی بات، جب بھی ہم، آپ بھی ادھر گھوم جائیے، سب سے پہلی بات جب بھی ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہونے میں آپ یہ احتیاط رکھیے کہ آپ کا جو ہاتھ، یا آپ شارٹ پہنے ہیں یا کرتا پہنے ہیں، آپ کی آستینیں یہ فولڈ نہ ہو، جیسے کہ ان کا فولڈ ہے تو یہ پورا آپ کو صحیح کر لینا ہے۔ صحیح کر لیجیے آپ۔ یہ صحیح کرنا ہے۔ اور دوسری بات، جب بھی ہم نیت کرتے ہیں تو سب سے پہلے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو، جیسے کہ ابھی ادھر ہے لیکن ہم آپ کو سکھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، جب بھی ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہونے میں ہمارے جو پاؤں ہے، تو پاؤں کی جو 4 انگلی ہے نا، تو بیچ میں 4 انگلی کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ ان کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ نماز ایسے پڑھ، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ تو کیسے پاؤں کی انگلی کرنا ہے؟ 4، ہاں، بیچ میں 4 انگلی کا فاصلہ۔ دوسری بات، جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہم کھڑے ہوں گے ایک دم سیدھے، نہ ویسے جھکیں گے نہ ٹیڑھ رہیں گے، بلکہ سیدھے ہوں گے۔ اب آپ کو جو نماز پڑھنی ہے اس نماز کی آپ نیت کریں گے۔ جیسے ہم فجر کی 2 رکعت نماز پڑھنے کی نیت جو ہم کرتے ہیں، تو یا اللہ پاک، نیت کی میں نے نماز فجر فرض کی 2 رکعت اللہ تبارک تعالیٰ کی واسطے یوں میرا کعبہ شریف کی طرح پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، یہ نماز کی نیت، آپ نے نماز کی نیت کرنی۔ اس کے بعد ہمیں ہاتھ اٹھانا ہے، نیت باندھنی ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اللہ اکبر۔ تو ان کو آپ نے دیکھا کہ یہ اللہ اکبر ایسے کر رہے ہیں، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ ہاتھ اٹھانا ہے، اور ہاتھ آپ انگلیوں کو دیکھیں تو نہ زیادہ پھیلانا ہے نہ زیادہ ملانا ہے، بلکہ ایک دم نارمل، اور آپ نے گردن کو بھی نہیں جھکانا ہے، بلکہ یہ صحیح اللہ اکبر باندھیے تو ایک دم سیدھے سے ایسے، یہ ہاتھ آپ کے ایک دم ایسے سیدھے رہے، ایک دم نارمل کیجیے، شوق
अब नियत कीजिए अल्लाहु अकबर। अब हमें नाक के नीचे बांधना है, नाक के नीचे मतलब घोड़ी के नीचे। अब लोग गलती क्या करते हैं, कोई ऐसे नहीं बांधते हैं, कोई ऐसे बांधे रहते हैं, तो ये तरीका सही नहीं। नियत बांधने का सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि आप नाक के नीचे बाएं हाथ और उसके ऊपर दाहिने हाथ। अब बाएं हाथ को जब आप ऐसे हिलाएंगे तो यहाँ पर आपकी हड्डी है जिसको हम कलाई कहते हैं, दाहिने हाथ की छोटी उंगली और जिससे इसको पकड़ना है और इस तीनों उंगली को बीच वाले को ऊपर रखना है। अब नाक के नीचे यानी घोड़ी के नीचे हमें नियत बांध लेना। अब यहाँ पर हम सना पढ़ते हैं, उसके बाद बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पूरी पढ़ते हैं, पूरी सूरह मिलाते हैं। उसके बाद हम जाते हैं रुकू में। रुकू में जाने में आपने इनको देखा कि रुकू में जब हम जाते हैं तो अल्लाहु अकबर। अब रुकू में, आप रुकू में जाइए तो रुकू में हमें हाथ ये टेढ़ा नहीं करना है, बल्कि हाथ एकदम सीधी रखना है, टाइट। और जब आप हाथ सीधी रखेंगे तो आपकी ये जो गर्दन है ये भी सीधी हो जाएगी। अब आप देखिए इनकी गर्दन भी सीधी है, इनकी पीठ भी। अब जब हम रुकू में रहते हैं तो रुकू में हमें देखना होता है अपने अंगूठों पे, यानी अब पांव के जो आपके अंगूठे हैं उस अंगूठों पे देखना है। और जब आप खड़े रहते हैं नियत बांध के तो आपको देखना है अपने सजदे की जगह। जैसे किबला इधर है तो अभी हम आपको दिखाने के लिए और समझाने के लिए गए हैं, जब हम नमाज पढ़ेंगे तो हम जहाँ पे सजदा करेंगे वहां पर हमारी खड़ी होने में निगाह रहेगी। उसके बाद इन्होंने रुकू कर लिया। अब रुकू में जाने के बाद लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि रुकू में हम तस्बीह पढ़ते हैं सुभान रब्बियल अज़ीम 3 5 7। उसके बाद हम जब खड़े होते हैं समी अल्लाहु अकबर। यानी सबसे बड़ी गलती जो हदीस पाक में ममनू करार दिया गया इस गलती को, और उसकी वजह से हमें नमाज रिपीट यानी दोहरानी पड़ती है। वो गलती क्या है? हम जब रुकू से खड़े हों समी अल्लाहु लिमन हमीदा, तो यहाँ पर आप थोड़ी देर रुकिए। इतनी देर में आप एक बार सुभान अल्लाह कह सकते हैं, यानी समी अल्लाहु लिमन हमीदा। अब यहाँ पर आप रुक गए, उसके बाद हम जाएंगे सजदे में। तब हम सजदे में जाते हैं तो ये सजदे में जा रहे हैं। अब सजदे में जाने में हमने सबसे पहले गलती क्या हुई थी इनसे, हम इनको बताते हैं इनका सही सजदा होगा जो हम किताब में पाते हैं। सजदे में जब हम जाते हैं तो सजदे में आप मुझे देखिए कि सजदे में जाने में इस बच्चे को देखा गया कि ये अपने हाथ को ऐसे मिलाए तो जमीन से, ये हाथ को जमीन से ऐसे मिलाए हुए हैं, तो ये तरीका सही नहीं है। बल्कि आप जब सजदे में जाएंगे तो आपकी जो हाथ रहेगी वो हाथ ऐसे खड़ी रहेगी, हाथ ऐसे खड़ी रहेगी। अब सजदे में जब जाते हैं तो लोगों से सबसे बड़ी गलती ये होती है कि सजदे में जाने में उनको मसला पता नहीं होता है, और वो गलती क्या करते हैं कि पांव की जो उंगली है, किताब में है मसला है कि दोनों पांव की 3-3 उंगली यानी दाहिने पांव और बाएं पांव की 3-3 उंगली का पेट जमीन पर लगना वाजिब है। और पेट का मतलब क्या है? जब आप सजदे में होंगे तो आपकी जो ये पांव है ऐसे खड़ी नहीं रहेगी, बल्कि ये पांव ऐसे फोल्ड रहेगी, यानी उंगली पूरी जमीन पे लगाना ये वाजिब है। जिनके पांव में दर्द वगैरह ना हो तो ये वाजिब है। और जब हम सजदे में जाएंगे तो सबसे अहम चीज जो हमारे लिए है वो हाथ को फैलाए रखना है, जमीन से नहीं लगाना है। पांव की जो दोनों उंगलियां हैं 5-5 उसको जमीन पेट पे लगाना है यानी फोल्ड करना है। और सजदे में सबसे अहम ये नाक, आप मुझे देखिए ये नाक की ये नॉर्मल हड्डी है जिसको हम हिला सकते हैं यानी गोश्त है, और इसके ऊपर है टाइट वाली हड्डी जिसको हम हिला नहीं सकते, और ये माथा यानी पेशानी, इन दोनों का जमीन पर लगाना सख्ती के साथ ये वाजिब है। तो हम क्या करेंगे? जोर से जमीन पर लगाएंगे। अब जो सजदा करने का तरीका है ये अब हमें सजदा करने का तरीका दिखाएंगे। चलिए यहाँ पे जैसे बताए हैं वैसे आपको सजदा करना है, ताकि सबको दिखे। हाँ कीजिए आप सजदा, सजदा डायरेक्ट सजदा कीजिए।
अब देखिए सजदा जब हम करेंगे तो ये जो पाँव है, पाँव की ये उंगली ऐसे फोल्ड रहेगी और ये भी ऐसे फोल्ड रहेगी, और ये जो हाथ है इनका हाथ ऐसे बिछाना नहीं है बल्कि हाथ ऐसे खड़ी रखना है। तो ये है सजदा करने का सबसे बेहतरीन तरीका। और पाँव की उंगलियां आप देख रहे हैं कि ये लगी हुई है और ये वाजिब है। उसके बाद आप हर रकत में 2 सजदे करते हैं। चलिए बैठ जाइए। तो अब 2 सजदे करते हैं तो उसमें गलती क्या होती है, जब हम सजदा करते हैं तो लोगों को ऐसे देखा गया है कि एक सजदा में है, अब यहाँ पर तस्बीह पढ़े सुब्हान रब्बियल आला, फौरन अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, यानी कि लोग ये गलती करते हैं कि जब आप सजदे में जाएं तो एक सजदा के बाद जब आप दूसरे सजदा करें सुब्हान रब्बियल आला अल्लाहु अकबर, तो यहाँ पर आप एक मर्तबा सुब्हानल्लाह कहने के बराबर रुकिए, ये वाजिब है। अगर आप इस वाजिब को भूल से छोड़ते हैं या इल्म न होने की वजह से छोड़ते हैं तो इल्म दीन सीखना फर्ज है, और भूल से छोड़ते हैं तो सजदा सही वाजिब होता है, और इसकी वजह से हमें अगर सजदा को नहीं करते तो नमाज दोहरानी पड़ेगी। तो ये आपने कर लिया। तो जब भी आप सजदा करेंगे तो यहाँ पर रुकेंगे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब हर रकत इसी तरीके से पूरी करना है। जब आप 2 रकत पूरी कर लें तो आप बैठते हैं। बैठने में भी लोग गलती करते हैं कि बैठने में कितने लोग पाँव ऐसे कर लेते हैं, कितने ऐसे कर लेते हैं। आपको जैसे आसानी हो आप उसी पाँव को कीजिए, लेकिन तरीका सही ये है कि आपके दाहिने पाँव की उंगली खड़ी रहे और बाएं पाँव की बीची रहे। आप ऐसे बैठिए और उसके बाद आप करते हैं पर, और यहाँ पर आप तैयार करते हैं। तो तैयार करने में लोग गलती क्या करते हैं, तो तैयार करने में उंगली को ऐसे खड़ी करते हैं, ये गलत है। तो तैयार में क्या करना है, जब हम तैयार करेंगे देखिए आप, जब हम तैयार करेंगे तो तैयार करने पढ़ते पढ़ते जब हम अशहदु अल से पहुंचेंगे तो वहां पर ये दाहिने हाथ ये शहादत की उंगली खड़ी करना है। और तरीका ये है कि आप हाथ को ऐसे रखें और ये ऐसे मिलाइए, यहाँ पर मिलाने के बाद ऐसे खड़ी कीजिए। अब हम यहाँ पर दिखा रहे हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके बाद मुझे इब्राहिम पढ़ना है और दुआ मासूम पढ़नी है। लास्ट में जब हम सलाम फेरते हैं, मुझे देखिए, तो सलाम फेरने में लोग क्या करते हैं, जब आपने तहियात भी पढ़ लिया, इब्राहिम भी पढ़ ली, दुआ मासूम भी पढ़ा, अब आप सलाम फेरना चाहते हैं तो लोग गलती करेंगे सलाम फेरने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। नहीं, ये तरीका सही नहीं है। तरीका सही है कि जब आप सलाम करेंगे तो आपकी जो गर्दन है एकदम नॉर्मल घूमेगी। अब आप जब सलाम फेरते हैं तो या अपने ढाल की नजर कीजिए या अपने कंधे की तरफ नजर कीजिए। अब आप सलाम बेहतरीन अंदाज मुझे दीजिए, सलाम का बेहतरीन अंदाज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये है सलाम का बेहतरीन अंदाज। तो उसके बाद सलाम पढ़ लेते हैं। हर रकत आपको इसी तरीके से पूरी करना है। और नमाज के अंदर जो सबसे मेन चीज जो खास ख्याल रखना है, देखिए नमाज के अंदर जो पढ़ने का तरीका है वो अलग है, लेकिन बैठने उठने का तरीका भी सही होना चाहिए। जैसे नियत बांधने का, रुकू करने का, का सजदा करने का, तो ये तरीका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको आप देखिए, इस पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी नमाज दुरुस्त रहेगी। अब लोग ये बड़ी और गलती करते हैं कि जब जीन्स या पैंट वगैरह पहने होते हैं तो उससे क्या करते हैं कि इसको फोल्ड कर लेते हैं। तो ऐसे फोल्ड करके नमाज नहीं पढ़ना है, बल्कि आप जीन्स वगैरह पहने हो या पैंट पहने हैं या पायजामा पहने हैं तो आप नमाज पढ़ने से पहले आप इसको अच्छे से दुरुस्त कर लीजिए। और उसके बाद अपना कंफर्टेबल होकर नमाज पढ़िए। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह रहमत से अल्लाह पाक की उम्मीद है कि आपकी नमाज कबूल होगी और आपको फायदा होगा। अल्लाह तबारक व तआला की दुआ है कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।